तत्वतः देवी भगवती सच्चिदानंदमयी हैं। देवी भागवत के माध्यम से इस तत्व की निष्ठा को ग्रहण करने पर लक्ष्य की पूर्ति होती है। सृष्टि संकल्प से बनी है ईश्वर के, अतः संकल्प अभिव्यक्ति है शक्ति का। शिव संकल्पमस्तु। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव। Hi Jai Mata Di, this is your host Amit Koul. As I promise you always, and I keep you guys always in touch with the places which are unexplored here in J&K. And today we are at the Baba Dhansar. And as I have a liking to be off camera always, and I always try to find out new people who can accompany me, finding and just trying to seek help from others in helping for making my documentary. And today I have Mr. Arun Koul with me. He is going to tell you the history of Riyasi, and on right hand side of my is Amodni Karwani. She is going to throw some light on Baba Dhansar. As you can see, there is a pond just behind me, and I would request cameraman if he can zoom that pond. And I hope you are going to like this place also. I don't know how many of you might have been to this place, but I'm surely I'm very much cocksure that you guys are going to enjoy this. Thank you very much. Enjoy yourself. Riyasi is emerging as one of the tourist attractions of Jammu province, with tourists coming from all parts of the country throughout the year and visiting religious places like Mata Vaishno Devi Shrine, Shiv Khodi, Dera Baba Sahib, enjoying adventure sports like river rafting and hiking, and enjoying the lush green hills, watching Salal projects from top of the hills. Riyasi has religious importance. Riyasi is one of the oldest towns of the J&K. It was the seat of Bhimghat state, said to have been established by Raja Bhim Dev Sen somewhere in the 18th century. It remained independent till 1822. Maharaja Gulab Singh and the ruler of the J&K consolidated it. In 1948, administrative recognition from the state was undertaken. The major part of the Riyasi was merged with district Udhampur, while some areas became part of the district Poonch. It was again created as a district after the administrative recognition of the state in 2006. Jai Mata Di. I am Amodni, and today we are here at Baba Dhansar. So I am going to tell you a bit about this unexplored place. The holy place of Baba Dhansar is located at Karwa Jheel, near village Karwa, 17 kilometers from Riyasi, towards Katra in Riyasi district of Jammu and Kashmir state, India. The approach involves a walk of 200 meters from the road. It is a mythological belief that when Lord Shiva went to the Amarnath cave to tell Parvati the story of his immortality, he left his serpent king Sheshnag at Anantnag.
Sheshna came in the human form as Vasudeva. One of the sons of Vasudeva was Dansar, who was a saintly person. In the cave, there is a rock face, which is a naturally formed shivling on which droplets of water fall at a constant place all the year round. A big fair is held here during Shivratri. For the facility of the yatris visiting the place, the Shrine Board has carried out some developments, including the construction of a dharamshala and a bath downstairs. People believe that their wishes are fulfilled if they take a bath in the stream and pray with complete faith. A large number of devotees visit the place every year on the day of Mahashivratri, when an annual fete is organized. As we told you, 65 kilometers from Jammu, on way to Salal Dam, Baba Dansar is a beautiful and cool picnic spot. Here, a huge spring gushes out of the mountainside in a thick grove of trees and forms a number of small cascading waterfalls before ultimately flowing into the holy rivulet that merges with the Chenab river. Next to the spring, in a small groove in Karwa Jheel or pond is considered sacred and bathing is not allowed in the waters. However, many devotees take a bath further downstream, believing their sins will be washed away and their wishes will be fulfilled if asked with an earnest heart. A spring emerges from the rocks present in the thick grooves of trees and cascades as waterfall into the stream. The festival of Mahashivratri is celebrated in a grand way at this temple. In a beautiful location right by a pond, the holy shrine of Baba Dansar attracts a lot of pilgrims every year. Baba Dansar is the son of Vasudeva, the Serpent King. It is believed that many years ago, a demon lived near this pond and created havoc and destruction amidst the local community. The villagers came and asked Baba Dansar to help them out. Baba then prayed to Lord Shiva, who agreed to help them kill the demon. After peace was restored in the area, the villagers built a Nag temple and a Shiva temple in honor of the gods. पंडित जी प्रणाम। जय श्री राम। हम आपके इस प्राचीन मंदिर में आए हैं। इस मंदिर की महानता, इसका नाम, ये कब से है, आप हमें पूरा इसका विस्तार पूर्वक हमें बताइए। जी, ये मंदिर जी बाबा धनसर जी के नाम से जाना जाता है ये, और ये मंदिर जो है प्राचीन काल के हैं, सदियों पुराने हैं। जब से समुद्र का जो मंथन हुआ था, इनके पिताजी थे वासुकी नाग, उनका तब अवतार हुआ था। तो उनके परिवार के जो सदस्य हैं, 22 बेटे हैं उनके और 84 उनके पोते हैं, और 22 बेटों में से एक धनसर बाबा जी हैं, शेषनाग हैं ये। तो ये जो आपके पीछे पानी बह रहा है, इसकी क्या विशेषता है? पानी की विशेषता ये है सर, ये पानी जो है ये नेचुरल पानी है। जो बाबा धनसर जी है वो शेषनाग है। शेषनाग धनसर बाबा इस झील के अंदर रहते हैं। इस झील के अंदर एक नाग के इनके यहाँ नेचुरल दर्शन है। और ये पानी आधा किलोमीटर पीछे चले जाओ, पीछे हमारा गांव है, खेती बाड़ी है, ज़मीन है, पीछे कोई पानी नहीं है। आधा किलोमीटर के ऊपर आपको ऐसा लगेगा कि बारिश का एक बूंद पानी जो है अभी पत्थर के ऊपर गिरा है। तो उसके बाद नीचे आते जाओ तो ये पानी नेचुरल जो है बढ़ता जाता है, लेकिन ये पानी दिखता नहीं है ये कहाँ से निकल रहा है कहाँ से नहीं, और सारा निकल के बढ़ चढ़ के सारा इस झरने के बीच गिरता है। झरने के बीच स्वयं शेषनाग जो है धनसर बाबा जी रहते हैं इसके बीच। तो ये जो पुराना शिवलिंग है अंदर, ये कैसे है, क्या है, इसकी क्या महानता है, ये कब से है? इसकी महानता ये है सर, ये बाबा धनसर जी जो शेषनाग हैं, ये हमारे कुलदेव हैं। इस गांव का नाम जो है कारुआ नाम है, मेन जगह का नाम कारुआ है, लेकिन कहाँ जाना है, बाबा धनसर के जाना है। तो जो धनसर बाबा जी शेषनाग है, ये हमारे कुलदेव हैं। हमारे यहाँ किसी ज़माने में बड़े बेटे की जो है बलि लगती थी। बड़े बेटे की जब बलि लगती थी तो धनसर बाबा जी ने यहाँ बैठ के 12 साल जो तपस्या करी थी। तपस्या करी भोले बाबा की, तो भोले बाबा ने इनको दर्शन दिए इस गुफा के अंदर। तो भोले बाबा जी ने पूछा धनसर बाबा जी को कि महाराज आपने मेरी जो तपस्या करी है क्यों करी है? तो धनसर बाबा जी ने पूछा कि महाराज जी जो इस गांव के अंदर जो राक्षस है
कि किसी के घर भी बड़ा बेटा होता है तो उस बेटे को ये मार के खा लेता है, बलि लेता है, तो जो क्या सर्कल है ये। तो धनसर बाबा जी ने बोला कि महाराज जो ये भूत प्रेत हैं ये आपके इस पास रहते हैं, तो मैंने इसलिए जो आपकी ये भक्ति की है। तो भोले बाबा ने पूछा कि महाराज जी आप वासुकीनाथ जी को पूछते तो इस चीज़ का उत्तर वो भी दे सकते थे, लेकिन धनसर बाबा ने बोला कि नहीं, जो भूत प्रेत हैं ये आपके साथ रहते हैं, तो मैंने इसीलिए जो है आपकी भक्ति करी है। तो तब धनसर बाबा जी को भोले बाबा जी ने बोला कि जो इनके साथ काली माता जी रहती हैं, इनका नाम बूढ़ी माता जी है, ये जहाँ भद्रवाह में रहती हैं, भद्रवाह में इनका स्थान है, तो कभी कभार जरूरत पड़ेगी तो इनको यहाँ बुला लेना और ये अपने आप जो भी काम होगा ये कर लेंगी। तो उस टाइम जब 12 साल इन्होंने तपस्या करी, 12 साल बाद एक बेटे की जो बलि लगनी थी, वो बूढ़ी माता जी थी, हमारे गांव में यहाँ सबसे गरीब थी, उसका कोई सहारा नहीं था, एक ही बेटा था, घर वाला जो था उसका मर चुका था। तो जब वो दिन आया, 12 साल पूरे हुए, तो उस दिन उस बेटे की बलि लगनी थी। जब बलि लगनी थी वो बेचारी रो रही थी और साथ में रोटी बना रही थी। रोटी जो है तली हुई होती थी, जिनको हम डोगरी भाषा में खमीरे बोलते हैं। वो राक्षस आता था, वो खमीरे खाता था, पहले वो खमीरे खाता था, उसके बाद जाके वो बेटे की बलि लेता था। तो जब आया राक्षस, शाम को आना था उसने, तो बूढ़ी माता जब रोटी बना रही है और साथ में रो रही थी वो, तो उनके पीछे आगे एक साधु जी कोई खड़े हो गए। पीछे से माता जी को आवाज़ आती है, माता जी आप इतनी अच्छी रोटी बना रही हो, साथ में आप रो रही हो, तो मेरे को कोई समझ नहीं आ रही है ये बात क्या है, मेरे को बहुत भूख लगी है, जी करता है खाने का, लेकिन खाऊं कैसे, आपके आंसू देख के मेरा जो है पेट भर गया। तो माता जी बोलती है बाबा जी को, लेकिन शक्ल नहीं देखी माता जी ने उनकी। माता जी बोलती हैं आपने खानी है खाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, मेरे को अपना काम करने दो। एक बार पूछा, 1000 बार पूछा, लाख बार पूछा, एक ही क्वेश्चन और एक ही उत्तर यही। तो आखिर में लास्ट में बाबा जी ने जब पूछा तो माता जी ने लास्ट में बोला आपने सुनना तो सामने आके बैठे, पीछे खड़े होके क्या बात करते हो। तो जब बाबा जी सामने आए तो माता जी ने उनकी शक्ल देखी, ऊपर से लेकर नीचे तक वाइट पगड़ी पहनी है, वाइट उनकी दाढ़ी मूछ है, वाइट वस्त्र पहने हैं उन्होंने। तो माता जी ने देखा कोई बुजुर्ग साधु जी आए हैं, तो साधु जी ने बोला भाई क्या चक्कर है ये, मेरे को जरा बताओ जरा। भगवान को तो सारी पता होती है, लेकिन भगवान जो है दुख किसी के मुंह से भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपना इतिहास जो था पहले ही रच लिया था, ठीक है ना। तो बाबा जी जब सामने बैठे, सामने बैठ के माता जी ने बताया महाराज जी हमारे गांव में यहाँ राक्षस है, वो बड़े बेटे की जो है बलि लेता है, साथ में ये वो खमीरे खाता है, ये उसके लिए मैं बना रही हूँ, आज मेरे बेटे की बलि लगनी है। तो बाबा जी ने बोला माता जी ऐसे कीजिएगा, चले जाओ गाँव में जो बड़े बड़े लेडीज हैं, जेंट्स हैं, उन सबको यहाँ बुलाओ कि कोई मेरे घर में साधु जी आए हैं, वो पूछ रहे हैं कि जो ये बलि लगती है ये कैसी बलि लगती है, मैं जरा सबको पूछूं। तो माता जी गई, सबको आवाज़ लगाती रही, जो भी उसकी शक्ल देखता था वो छुप जाता था। कोई बोलता है कोई डायन आ गई है, कोई बोलता है ये मनुष्य आ गई है, या कोई कुछ बोलता है, क्योंकि गरीब थी, कोई ये ना सोच ले कि मेरे से कोई 10 रुपये उधार मांग ले, फिर ये झुकाएगी कहाँ से। कोई ये सोचता था कि कोई आटा उधारा ना मांग ले, फिर वापस कहाँ से देगी। लेकिन माता जी चलती रही और आवाज़ लगाती रही, जो भी उसकी शक्ल गांव में देखता वो छुप जाता था। तो आखिर माता ने बोल बोल के वापस आ गई। जब आई तो बाबा जी ने पूछा कि आप बोल दिया आपने? तो माता जी ने बोला हाँ महाराज बोल दिया, लेकिन जो मेरी शक्ल देख रहा था वो छुप जा रहा था। कोई बात नहीं माता जी, बैठ जाओ आप। माता जी को बिठाया अपने पास। इतनी देर बाबा जी ने बोला देखो पीछे मुड़ के। जब पीछे मुड़ के देखा तो पूरे गांव के लोग तमाशा देखने के लिए आ रहे थे। तमाशा क्या देखने के लिए आ रहे थे कि इतना बड़ा जोधा कौन आ गया जो इस गरीब के बच्चे को आज बचाएगा। क्योंकि जो भी सोचता था, घमंड होता है ना जो अपने अंदर, घमंड की बात थी। जो भी था, कोई ताकतवर था, कोई पैसे वाला था, कोई क्या था, वो ये सोचता था कि मैंने अपने बच्चे की बलि दी है, इसके बच्चे को बचाने आज कौन आ गया। तो सभी लोग तमाशा देखने के लिए आ गए। जब सभी आए तमाशा देखने के लिए तो बाबा जी ने सबकी क्लास लगाई। उनको पूछा कि महाराज जी जो ये माता जी बोल रही हैं कि बड़े बेटे की बलि लगती है, साथ में ये रोटी खाता है, तो सबने यही उत्तर दिया कि हाँ महाराज जी मैंने भी अपने बच्चे की दी है। उसने बोला मैंने भी दिया, सबने यही बात बोली। तो बाबा जी ने बोला ठीक है भाई, बात ऐसे है, जो जेंट्स है सभी जंगल में चले जाओ। हमारे जंगल के अंदर यहाँ एक लकड़ी होती है, बड़ी बेकार सी होती है,
हम जिसको डोगरी भाषा में बोलते हैं सोल की लकड़ी बोलते हैं, वो लकड़ी लेके आओ। जितना इसका बेटा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, इतनी लेके आओ। जो औरतें थी तो औरतों को बोला आप चले जाओ, सभी अपने अपने घर में जाओ। गोबर के जो ओखले ओखले होते हैं, हम उनको डोगरी भाषा में गोटे बोलते हैं, कोई पाथियाँ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। सभी औरतें वो लेके आ जाओ। तो औरतें चला गई, उन्होंने अपने बोरियां भर भर के ओपले जो थे वो लाए। जो जेंट्स थे वो चला गए जंगल में, जंगल से वो लकड़ी लेके यहाँ आ गए। जब आए लकड़ी लेके तो एक टोकरा बनाया बहुत बड़ा। उस टोकरे के बीच उस दिन उन्होंने खमीरे नहीं डाले, वो रोटियाँ ओपले डाल दिए, गोटे जिनको बोलते हैं। उनके ऊपर एक वाइट कपड़ा दे दिया। अंदर जो जिस दिन बेटे को लटाना था, बेटा नहीं लटाया, बेटे की जगह वो लकड़ी लटा दी और उस लकड़ी के ऊपर वाइट कफन दे दिया। जब शाम को सुबह जब भी वो राक्षस आया, आते ही जो तब पहले आता था तो आते ही वो रोटी खाता था। जब वो आते ही उसने मुंह मारा उसको, तो उस दिन उसको रोटी नहीं मिली, वो ओपले जो गोटे आते हैं वो मिले। तो उसने दाढ़ इतनी मारी, गर्जा था कि दुनिया कांप उठी। और हवा, तूफान, बारिश के साथ ये पेड़ पौधे जो है जड़ से उखड़ के चला गए थे। उसके बाद गुस्से में जाके वो अंदर चला गया। अंदर जाके उसने जैसे बेटे को मुंह मारा, उसने खाना था, तो उस दिन बेटा नहीं था, लकड़ी थी। तो उस दिन धनसर बाबा जी ने यहाँ बूढ़ी माता को प्रकट कर लिया था, काली का रूप धारण करके। जब काली का रूप धारण करके प्रकट किया तो काली माता जी ने अपना काली का रूप धारण करके तलवार और खप्पर जो उसका होता है वो उसने हाथ में ले लिया था। जैसे राक्षस अंदर गया, उसने मुंह मारा उसको, तो दांत फंस के बीच, तो काली माता ने मारी तलवार की, उसको काट दिया। काट के चला गई। फिर वो ऊपर हमारे गांव में आज भी वो पत्थर मौजूद है, बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ी है। जिस पत्थर के साथ माता जी ने तलवार साफ की थी, वो पत्थर बीचों बीच 2 पीस हो गया है बराबर। उसके बाद ऊपर चला गए, पहाड़ी के ऊपर चले जाओ। उस जगह का नाम है राक्षस का नाला नाम है, जहाँ पे वो रहता था। उधर भी ऐसी झील है। उस झील का रंग जो है आज भी लाल है, लेकिन वहाँ जाता कोई नहीं है, खाली लोग जाते हैं घास लेने के लिए गाँव से। थैंक यू पंडित जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई। और शायद ही कोई इस कथा के बारे में जानता होगा। थैंक यू। दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यं मे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्युररि कुरुता दुरुतापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि